Assalamualaikum everyone. Welcome to the Empowerment Through Learning, a digital platform relentlessly focused on bringing the critical gap between academic theory and technological reality and elite professional development. In this podcast series, we bypass the superficial hype of quick fix coding boot camps and overnight tech well to bring Generation Z face to face with true industry pioneers. Our mission is to dismantle the illusion surrounding the technology sector, replacing empty motivation with actionable, high level blueprints for enduring global success. We dive deep into crucibles of research, psychological endurance required for mastery, and uncompromising standards of safety, critical engineering, arming the next generation with the unvarnished truths they need to build irreplicable intellectual capital. Our guest today is an educator, data scientist, researcher, and author with a passion for using data to solve real world problems. She is also the founder of TechFlow Hub, which is a platform helping businesses, professionals, and institutes to thrive in today's data driven world through expert training, AI driven solutions, and consulting. आज बेसिकली हम जिनके साथ बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनकी बुक के बारे में एंड उन इनसाइट्स के बारे में जो स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट अपनी जर्नी में अप्लाई कर सकते हैं. She is the author of Practical Time Series Analysis and Forecasting, a practical guide that brings together data science, forecasting, and hands on learning. So, without further ado, a warm welcome, Dr. Saloshana Oud, to Inked Voices. Thank you so much, Hamna, and I appreciate for your time and working towards the information giving to the youth that is preparing for their career, along with that helping to the professional as well. It's honor to be here. So a brief introduction of mine, Hamna, you did already, but just like I would say that I'm kind of coming from academia and transitioning to the data science field. So there was kind of the main purpose to see the insights of the industry, how the workflow works, because in academia, mostly we use the data science. And along with that, the research projects based on the secondary data. So that made me to transition from the academia to data science. And right now I am teaching in one of the university as assistant professor, along with my own company and working on the time series projects as well. So this is kind of a brief introduction of mine. So first of all, let's discuss about your book. Congratulations on your book. आप हमें बताएं कि practical time series analysis and forecasting लिखने का idea आप कहाँ से मिला? क्या कोई particular moment था या challenge था जहाँ आपको लगा कि this book needs to exist? Actually, this comes from observing the students along with that, the data analyst, because what happens when we work with data science projects? So we search online different material that's kind of a theoretical or it's kind of a fragmented. So what happens, the challenge becomes that how to connect based on the nature of the project. तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे कोई ऐसी चीज करनी है जिसमें मैं वो जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है उनको समझ के एक डॉट क्रिएट करूं जिससे वो आराम से किसी को समझ में आ जाए. So this was the concept behind that I wanted to make a book that is going to describe what's difference between the statistical models, what's difference between the machine learning model, and looking at the nature of the data, how we can practically apply these concepts, the models, to the data that we have, and that can be applied to the use cases. So this was the main purpose behind that. Okay. Ma'am, I would like to ask you, हर सक्सेसफुल करियर का एक डिफाइनिंग एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. तो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई एंड आपका टेक में डेटा साइंस में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ एंड देन वो इंटरेस्ट आपको एक ऑथर बनने की तरफ किस तरह ले गया? तो थोड़ा मैंने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में डाला कि आई स्टार्टेड फ्रॉम द academia. But the thing was this, like, it started with a curiosity. Okay, I wanted to see that what makes the data changed over time.
बिकॉज जब आप टाइम सीरीज की बात करते हैं तो इट्स डिफरेंट फ्रॉम द मशीन लर्निंग सिंपल data, because that is kind of machine learning. If does not have the time variable into that one, we can discount as a independent rows. But टाइम सीरीज में क्या होता है कि आप एक रो को पिछले दिन के डेटा से अलग नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है। सो दैट मेड मी टू अंडरस्टैंड कि भाई डाटा इटसेल्फ ही आपको स्टोरी बताता है। देन आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी कि मैं जो है इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स पे काम किया, इंक्लूडिंग एकेडमिया एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी विद अ लॉजिस्टिक कंपनी। तो उससे क्या हुआ कि मुझे आइडिया हुआ कि भाई आपका जो डाटा आता है किस हिसाब से आता है, एंड हाउ यू कैन अप्लाई practically after the forecasting, how it can help to the business as well. So जब ये चीजें मेरे सामने आई, देन इन चीजों ने मेरे स्किल्स को एनहांस किया, एंड उसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ने मुझे आइडिया दिया कि आई शुड राइट अ बुक, ताकि अगर मुझे जो चैलेंजेस फेस हुए हैं वो अपकमिंग जो यूथ है, प्रोफेशनल्स हैं, वो उसको अच्छी तरह handle कर सके. So that was the main thing that helped me to get the idea of the main data. That curiosity helped me to get the logic, and after that applying to the practical industry and writing the book. टाइम सीरीज एनालिसिस का नाम जब बिगिनर सुनता है तो ये काफी टेक्निकल और डिफिकल्ट लग सकता है। अगर कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपकी बुक उठाता है तो आप उसे क्या कहेंगी, और बुक की स्ट्रक्चर किस तरह बिगिनर्स को स्टेप बाय स्टेप लर्निंग में हेल्प करती है? I would say time series looks complex, but the fundamental is that you need to understand what is the concept behind the temporal dimension. जब हमें वो चीज समझ में आती है, then it's very easy to understand. तो इस बुक में मैंने क्या किया है कि आई वेंट थ्रू द सिंप्लीफाइड एग्जांपल्स। लाइक मैंने क्या किया कि टाइम एक्चुअली है क्या, हम डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्यों कहते हैं कि वी कैन नॉट चेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हम क्यों कहते हैं कि भाई पिछले दिन का, पिछले हफ्ते का जो डाटा है वो क्यों आज के डाटा से रिलेटेड है। तो मैंने वो जो सिंप्लीफाइड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले एक्सप्लेन किया है। Then what I did along with the concept, I use the Python code, ताकि जो भी रीडर्स हैं वो उसको हैंड्स ऑन करें, ताकि साथ ही साथ उसको अप्लाई करें। और उसके लिए मैंने एक तो बुक में पाइथन कोड डाला है, along with that मैंने रेपो क्रिएट किया है गिटहब पे, एंड देन आई मूव फॉरवर्ड विद द एडवांस्ड मॉडल्स। तो उससे क्या है कि जो रीडर्स हैं उनको एक प्रॉपर फ्लो नजर आएगा, उसमें उनको एक डिफिकल्टी फील नहीं होगी, बट दे विल टेक द कॉन्सेप्ट्स एंड स्लोली ग्रेजुअली दे विल गो विद द एडवांस्ड मॉडल्स. So I feel like I try to make the book easy to understand, just like practical, but that makes individuals to feel like easy to read and apply practically. राइट मैम। मैम जैसे कि आपने अभी बताया कि यू हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन कि जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े उनको नज़र में रखते हुए, उनको एज अ मोटिवेशन यूज़ करते हुए आपने ये बुक लिखी। बट स्टिल राइटिंग अ टेक्निकल बुक टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। तो क्या राइटिंग के दौरान कभी ऐसा हुआ कि यू वर लाइक आई गिव अप, या शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए, डाउट था? और अगर ऐसा आया तो व्हाट केप्ट यू गोइंग? Definitely, Hamna, because just like when you're writing a book, you need continuity, you need kind of constant refinement and discipline as well. You know, then daily routine, you get kind of a different appointments and schedules come in front. But जब मैंने ये realize किया कि इस book का impact क्या होगा, ये स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करेगा, या प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं वो अपने कैरियर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, या इस डेटा साइंस फील्ड में इसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, तो फिर मैंने वो एक मोटिवेशन कंटिन्यू रखी उस पर्पस को लेते हुए। डेफिनेटली आपके पास चीजें आती हैं, बट द थिंग इज यू सी द राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद व्हेन यू मेजर एनालाइज ऑल दीज थिंग्स, then you just come to the point, and that helped me to continue and finalize them. ओके,
हम अक्सर कहते हैं कि बिजनेसेस को फ्यूचर प्रिडिक्ट करना होता है। अगर एक बिजनेस अपने फ्यूचर ट्रेंड्स को बेटर फोरकास्ट कर सकते हैं तो उसे प्रैक्टिकली क्या एडवांटेज मिलता है? So I would say the greatest competitive advantage to the business is the strategic clarity. Because when we have a forecast, it is going to help the business to allocate the resources intelligently, to identify the risk. Along with that, even they can seize the opportunities as compared to the competitors in advance. So it is going to help them to prepare in advance. So they are going to be proactive instead of reactive. So this is kind of the thing that when you have a forecast and you have kind of a better result, so what you do, you identify your resources along with that, how I can apply the forecast. और उससे क्या होगा कि जो आपके पास forecast आई है तो आप next उसके लिए क्या strategy करनी है, क्या plan करना है, उसको कैसे operationalize करना है. That helps the business to do in advance as compared to the other companies. Right. मैम, पीपल ऑफन से कि डेटा इज द न्यू ऑयल, लेकिन अगर आपका हिस्टोरिकल डेटा इनकम्प्लीट है, इनकंसिस्टेंट है या मेसी है, तो क्या उस डेटा की दी गई फॉरकास्टिंग पे ट्रस्ट किया जा सकता है? हम डेटा साइंस में एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट. राइट. क्या होता है कि हमारे पास डाटा की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हमारा मॉडलिंग जो होगी वो अच्छी नहीं होगी. यू विल गेट द सेम रिजल्ट एज द डाटा इज थ्रोइंग. लेकिन क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपकी सिर्फ वो जो डाटा की क्वालिटी ही आपकी मैटर करती है ड्यूरिंग द फोरकास्टिंग. मेन थिंग कम्स कि क्या हम उस डाटा को समझ पा रहे हैं. क्योंकि हमने जब बात की कि जब टाइम सीरीज की बात आती है सो वी हैव इंडिपेंडेंट कॉलम दैट्स अ टाइम. तो मुझे अगर डाटा को समझना है आई हैव टू सी द what kind of the shape I'm getting, what kind of the pre-processing I need for that one. उसमें क्या मुझे उसकी जो पैटर्न देखना है, आई हैव टू सी द कंपोनेंट्स. मुझे उसमें देखना है कि उसका ट्रेंड किधर जा रहा है, उसमें सीजनैलिटी है कि नहीं है. दीज ऑल उसके बाद मुझे स्टेशनरिटी की जरूरत है या नहीं है. उसकी बेसिस पे मुझे कौन सा मॉडल यूज करना है. तो हमारे पास जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही मॉडल हर चीज पे अप्लाई हो जाए. वी हैव टू जस्ट गो फॉर ट्रायल एंड एरर. जब हम मॉडलिंग करते हैं तो हमें देखना होता है कि क्या ये मॉडल स्टैटिस्टिकल मॉडल होगा या फिर हम एडवांस मशीन लर्निंग. क्योंकि इसमें जब डाटा का इशू आ जाता है तो हमारे पास एडवांस मॉडल्स हैं. जस्ट लाइक हम लोग कहें कि एलएसटीएम हो गया या फिर आपका एक्सजी बूस्ट हो गया, फेसबुक प्रॉफिट है. ये लोग क्या, ये मॉडल्स क्या करते हैं कि इनमें चेंज पॉइंट और अलोंग विद दैट मिसिंग डाटा या फिर हमारे पास हाई जस्ट लाइक चेंज पॉइंट जैसे कहना अनोमली डिटेक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं. उन सब चीज़ों को ये मॉडल्स हैंडल कर लेते हैं मैथमेटिकली. उनमें जो होते हैं ट्यूनिंग के ऑप्शंस होते हैं. अगर हम अरीमा साइड पे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स पे जाएं तो उनमें वो चीज़ नहीं होती है. तो जब इस डाटा का इशू होता है तो एडवांस मॉडल्स हमें हेल्प करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम और उसको अच्छी तरह प्रेडिक्ट करने का. और साथ में हम उसको अच्छी तरह इंटरप्रेट भी कर सकते हैं. बट द थिंग इज कि आपको पहले डाटा को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि मुझे इस तरह के डाटा पे कौन सी टेक्निक अप्लाई. आई वुड से जब मेरे पास इस तरह की सिचुएशन आई थी तो मैंने उसमें पहले तो केमीन क्लस्टर भी यूज किया मैंने. क्या कहते हैं एक्सजी बूस्ट भी यूज किया. दीज आर मशीन लर्निंग मॉडल्स. लेकिन ये है कि वो मुझ पे मेरे जो डाटा पे काम नहीं कर रहे. फिर फाइनली मैंने टोटल फेसबुक प्रॉफिट भी यूज किया लेकिन कोई भी मॉडल मुझे वो प्रिडिक्शन नहीं दे रहा. मेरे पास एरर बहुत ज्यादा थी. तो मैं फाइनली डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे चली गई थी. तो दिस इज काइंड ऑफ द एग्जांपल कि आपके पास बहुत मैसी, जैसे हम लोग कहते हैं कि यूज केस देखते हैं, हमने कैगल से डाटा ले लिया, इट्स सिंप्लीफाइड. बट ये कि यू हैव टू बी रेडी कि नेक्स्ट टाइम हमें क्या चीज आने वाली है और उसको हमने कैसे हैंडल करना है. देन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड के मेन चीज हमें क्या चीज समझनी चाहिए और जिसके लिए हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की जरूरत है.
आपके एक्सपीरियंस में बिगिनर्स फोरकास्टिंग सीखते वक्त सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, और आपकी बुक उन्हें वो मिस्टेक अवॉइड करने में कैसे हेल्प करती है? आई वुड से कि जो हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या जब हम लर्न कर रहे थे ना टाइम सीरीज, तो हमें हमेशा माइंड में फैंसी मॉडल्स होते हैं। हम कहते हैं चलो हम लर्न करते हैं, अरीमा से हम प्रॉफिट से करते हैं स्टार्ट, लेकिन हम ये नहीं समझते कि मुझे डाटा पैटर्न्स को डाटा माइनिंग की तरफ जाना है, कि मेरा डाटा है क्या, मुझे उसकी नेचर में क्या चीजें देखनी है, उसके कौन से कंपोनेंट्स देखने हैं। जो अगर मेरे पास इस तरह की सिचुएशन आ गई, देन मुझे कौन सा मॉडल अप्लाई करना है। सो मेन प्रॉब्लम इज द डाटा एनालिसिस, कि उनको पहले एनालाइज करना चाहिए एक्सक्यूज मी, एनालाइज करना चाहिए कि मेरे डाटा की नेचर क्या है। जब हम लोग उस चीज को एनालाइज करेंगे, देन मॉडलिंग इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि 80% of the task is the data analysis. Modeling is 20% almost. तो जब हम उस चीज को conceptualize करेंगे, then it would be very easy to predict and forecast with a better accuracy. So this is the main thing, that when you go, do not think that I have to apply this model in the start. Just see what's main target of the business and what are the just like main requirements. Based on those requirements, how I can analyze this one, and looking at the pattern, either I'm going with the statistical or the machine learning model. This is how it is going to work. I hope it helps. ओके Sure. मैम, आजकल हम कहते हैं कि चैट जीपीटी कैन ऑलमोस्ट डू एवरीथिंग। तो क्या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएम्स फ्यूचर में ट्रेडिशनल टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर दोनों के रोल्स फंडामेंटली डिफरेंट हैं? I would say कि LLMs and time series दोनों fundamentally different हैं। क्योंकि जब LLM की हम बात करते हैं, they mainly work on pattern recognition along with the reasoning या फिर language of the text identification. However, जो हमारी time series है, वो हमारे हैं basically they work with the numerical data, और उसमें उनका जो main component that is time series. बट जस्ट लाइक जब हम बात कर रहे थे कि दोनों को हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो जो LLM मॉडल्स है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, वो क्या करेंगे कि आपको फीचर इंजीनियर करके भी दे देंगे, दे आपको डाटा भी इंटरप्रेट करके दे देंगे, बट आपका ऑटोमेट भी कर सकते हैं। बट वो क्या करेंगे कि रैंडम आपका मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपका एरर होगा। बट जब हम बात करते हैं फोरकास्टिंग की, उसमें आपके स्टैटिस्टिकल एंड आपके जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, वो आपका नेचर देख के फिर अप्लाई होते हैं। उनमें आपका जो टाइम डिमेंशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखी जाती है, क्योंकि वो ग्राउंडेड है आपके टेम्पोरल डिमेंशन की बेसिस पे। सो हम नहीं कह सकते कि भाई LLM जो है वो उसको रिप्लेस करेंगे, दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट। Yes, people can use for few purposes, but there is no option to replace them. Ma'am, the master is at the end it would be LLMs anyway. So आजकल स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सिर्फ डिग्री रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए नहीं करते, बट दे टेंड के जो प्रोडक्ट वो बनाए वो उनको एंटरप्रेन्योरियल साइड के ऊपर हेल्प करे, वो उसे एज अ प्रोडक्ट शोकेस करें। तो अगर कोई स्टूडेंट फोरकास्टिंग पर FIP बनाना चाहता है, तो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप सजेस्ट करेंगी कि जो रिक्रूटर्स को जनरली इम्प्रेस करेंगे? Recruiter, if I am there, then what I would see कि आपकी टेक्निकल नॉलेज के साथ उसमें बिजनेस एप्लीकेशन क्या है। कोई भी स्टूडेंट मुझे टेक्निकल टास्क देता है, बट आई डोंट सी प्रैक्टिकलिटी कि उसको यूज किया कैसे जाएगा, और अलॉन्ग विद दैट वो कॉस्ट सेविंग कैसे देगा। क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है, डेफिनेटली कंपनी को कोई ना कोई आपका पर्पस होता है, आइदर दे वांट टू इंक्रीज द सेल्स, आइदर दे वांट टू डिक्रीज द कॉस्ट। सो इस तरह के ऑप्शंस होते हैं जिसकी बेसिस पे हमें प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो जब स्टूडेंट्स आपके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इन चीजों को माइंड में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू फोरकास्ट द डिमांड फोरकास्ट, लेकिन उसमें अगर वो डाल दें कि अनॉमली डिटेक्शन भी एक कंपोनेंट है, अगर मेरे पास अनॉमली आ जाती है और मैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सेक्टर को देख रही हूँ,
then this is going to help the business. Okay, ये anomaly कहाँ से आई, कैसे आई, इस बच्चे ने कैसे handle किया. So these are kind of the things that is going to just like understand the recruiter. This is kind of the candidate for moving further. Similarly, हम लोग अगर कहें कि retail inventory forecast है, उसके साथ हम cost saving analysis भी डाल दें, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो, एक तो आपने टेक्निकल स्किल डाल दिया, बट आपने ये कहा कि ये मॉडल कॉस्ट सेविंग कैसे करेगा, फिर आप उसकी रिपोर्ट कैसे बनाते हो कि भाई मैंने इसलिए किया कि ये आपको बिजनेस को इतना हेल्प करेगा. So this is kind of the things that is going to attract the recruiter, and they are going to give you positive feedback, and you can just move forward. I would like to know कि healthcare, finance, agriculture and energy major sectors. इन इंडस्ट्रीज में से आपको क्या लगता है कि कहाँ पे फोरकास्टिंग का इम्पैक्ट नेक्स्ट 5 years में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा एंड वाई? I would say energy, because if we see the rise of the renewable energy, like हम लोग देखेंगे solar system है, then we see the climate change, और उसके साथ the changing consumption of the energy. So just like the pattern that is changing, that makes the companies to forecast more, ताकि उनको पता चले कहाँ पे हमारी डिमांड है और कहाँ पे हमें इतना सप्लाई करना है. तो उसके लिए एनर्जी सेक्टर में ये ज्यादा डिमांडेड होगा. यस, इन फाइनेंस एंड हेल्थ केयर में भी होगा, इट विल बी ग्रोइंग, बट ये है कि इट वुड बी ट्रांसफॉर्मेटिव इन द एनर्जी सेक्टर, because everything is going with electricity. The people are computing using computers and all that, so the consumption is increasing, there is more advancement. So for that one, forecasting would be more required. बिल्कुल मैम. इसके अलावा आई वुड लाइक टू आस्क यू कि व्हेन समबडी इज राइटिंग कोड, वी कंसिडर दैट एज अ वेरी चैलेंजिंग एक्टिविटी. कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना और भी ज्यादा चैलेंजिंग होता है. तो आपकी बुक में कौन सा चैप्टर लिखने में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगा, और उस चैप्टर को इतना चैलेंजिंग, व्हाट मेड इट सो चैलेंजिंग? देखिए, जब हम बुक लिख रहे हैं, इवन कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो आई कीप माई सेल्फ बींग ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं उस फेज से गुजर चुकी हूँ. चाहे हम कहीं पे भी हो, स्टूडेंट लाइफ आपकी रहती है आपके माइंड में. तो बीइंग ए स्टूडेंट, जब आप बात कर रहे होते हैं, तो यू हैव टू सी द टेक्निकल टॉपिक आई एम राइटिंग. सो फॉर माय बुक इट वाज जस्ट लाइक एलएसटीएम और ग्रेडियंट बूस्टिंग. सो ये जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़े हार्ड है उसको समझना, या फिर सीएनएन आ गया. तो इस तरह के मॉडल्स में आपको थोड़ा टेक्निकल आपके लॉजिक समझने पड़ते हैं, बट हाउ यू कैन कीप इन ए सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, ताकि जो लेमैन की लैंग्वेज है उससे जो स्टूडेंट उसको जस्ट ग्रिप कर पाए. बिकॉज ये होता है कि यू हैव टू जस्ट पुट द फुट इन द डोर. फिर जब आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है, फिर आप क्या करते हो, जब आपको थोड़ा बेसिक्स पता होता है, यू एक्सप्लोर मोर. तो दैट दोज वर द चैप्टर्स, जस्ट लाइक उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा, और मैंने ट्राई किया उसको कि मैं उसको आसान डायग्राम की सूरत में रीडर्स को दिखाऊं, ताकि उनको थोड़ा समझ में आए कि ये कॉन्सेप्ट्स है क्या, और उसको हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं. तो यही चीजें मुझे लगता है कि जो रीडर्स जब पढ़ेंगे तो उनको मुश्किल नहीं होगी आपके मेन कॉन्सेप्ट को, और दे कैन स्मूथली रन दोज मॉडल्स when they have such kind of the data available. मैम, कोविड जैसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में फोरकास्टिंग के बारे में हमें क्या इम्पोर्टेंट लेसन मिला कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? कोविड के जब हम कोविड की बात कर रहे थे, तो प्रोजेक्ट्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि जिसमें हम प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज अप्लाई करें. तो फॉर एग्जांपल दिस, कितने पेशेंट्स आपके हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, अब ये है कि उसमें मुझे फोरकास्ट करना है कि मुझे उसके लिए कितना प्रिपेयर करना है अपने एसेट्स को, मेरे ह्यूमन रिसोर्सेज को, क्या मुझे मेडिसिन की सप्लाई चाहिए. तो मुझे देखना है कि पेशेंट इनफ्लो कितना है, एंड आफ्टर दैट हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज दैट वन. तो जब हम बात कर रहे थे इन्वेंट्री, जैसे हमने बात का रिटेल इन्वेंट्री, सिमिलरली आपका जो
पेशेंट इनफ्लो है उसकी हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में, या फिर आपका दोपहर में ज्यादा आते हैं, मॉर्निंग में ज्यादा आते हैं, किस रीजन से आते हैं. सो दिस इज काइंड ऑफ अ पैटर्न आइडेंटिफिकेशन कि भाई मुझे कौन से एरिया से, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड. उस पैटर्न को जानते हुए वी कैन जस्ट टेक द प्रिकॉशंस. वो फोरकास्ट आ गया, देन वी कैन मेक द प्रिकॉशंस. ओके, दिस इज द थिंग, either the area from the patients are coming, do we need to go and motivate them to provide the publicity or some kind of thing. So these are the strategies, those are going to help the businesses in advance to prepare for those kind of services जिसके लिए वो बैठे हुए हैं. हम हॉस्पिटल का एग्जांपल ले रहे हैं, इसी तरह मेडिसिन का हो रहा होगा कि आपकी जो भी, जहां पे आपका इनफ्लो पेशेंट्स का है, देन इट हेल्प्स देम टू एक्टिव प्रोएक्टिवली. तो इसलिए जो है फोरकास्ट आपकी कोविड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. बिल्कुल. आई वुड लाइक टू इम्प्रोवाइज अ क्वेश्चन ओवर हियर. आपने जैसे इतने सारे यूज केसेस हमें बताए इन द मेडिकल रीजन, तो पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग मार्केट में फोरकास्टिंग के कौन कौन से यूज केसेस अभी भी अनएक्सप्लोर्ड आपको लगते हैं? देखिए, मैं कहूंगी कि जब हम फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं तो आपका एजुकेशन सेक्टर हो गया, हम लोग बात करते हैं डेफिनेटली द हेल्थ केयर. बट उसके लिए हमारे पास क्या इस तरह का डाटा अवेलेबल है? क्योंकि मेन पॉइंट इज कि आपके पास वो सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपके पास वो डाटा अवेलेबल हो जिसकी बेसिस पे फोरकास्ट होगा. अगर मेरे पास डाटा ही नहीं है तो वो हम कैसे उस चीज को. सो दीज आर काइंड ऑफ द सेक्टर्स. बिकॉज हमारे पास एजुकेशन बहुत ज्यादा है, मैं देखती हूँ कि हमारे जो यूथ है वो ज्यादा एजुकेशन लेना चाहता है, बट हमारे पास उनके जो सिस्टम रिकॉर्ड है वो अवेलेबल नहीं है. कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आपके स्कूल्स तो हैं, बट वहां पे कोई चेक एंड बैलेंस कुछ स्कूल्स में नहीं है. तो वो जो एक रिकॉर्ड, हमारे पास डाटा जब होगा तो आपके पास उस चीज की सर्विसेज प्रोवाइड करने के बेटर ऑप्शंस होंगे. हमें पता होगा कि इस घर में आपके 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो उनको इनरोल करने के ऑप्शन, उनको किस तरह की एजुकेशन, उनको क्या पॉवर्टी लाइन है, ये सब चीजें जानकर ही हम लोग आगे जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. पर हमारे पास वो चीज सिस्टम ही नहीं है. हाउ आई कैन, सो आई फील लाइक द हेल्थ केयर एंड द एजुकेशन सेक्टर. मैम, फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट और उनको टाइम सीरीज का एक्सपीरियंस नहीं है, दे डोंट हैव इनफ नॉलेज, लेकिन वो एआई में या डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगी? एंड बुक ख़त्म करने के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए? मैं जैसे मेंटर काम कर रही होती हूँ तो मेरी एक ही एडवाइस होती है सबको, इवन जो भी फ्रेश स्टूडेंट्स है, कि आप स्टार्ट करो लर्निंग से, और उस लर्निंग को अप्लाई, जो टेक्निकल इसके उसको अप्लाई करो रियल डाटा सेट पे. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ओपन सोर्स डाटा अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन को उस टेक्निकल स्किल पे ले जाओ. जब आपके पास वो एक प्रिडिक्शन आ जाती है, देन गो एंड पब्लिश ऑन द गिटहब. जब आपके पास वो गिटहब, क्योंकि गिटहब आपके पास वो आपने पब्लिश कर दिया, इट गोज ऑनलाइन. सो उसके बाद क्या होगा कि आप उसकी जो इंसाइट्स हैं वो आप लिंक्डइन पे शेयर करो, or try to interact with whatever the target companies you have. उससे क्या होता है कि आप एक्टिवली जो आप इनसाइट्स अपनी डाल रहे हो, तो दे सी दैट दिस स्टूडेंट इज कॉन्स्टेंटली लर्निंग and creating the moments, and this is going to in the end open the doors for the opportunities. So just like it's kind of a, it's not about just आपको technical skill ही चाहिए. No, you need a communication skill along with that. आपके communication, how you present yourself in front of the people, those are the decision makers who are the working over there. So to the professionals, वो आपको जाने कि भाई आपका काम क्या है. जब आप अप्लाई करो, they already know it. Your work tells the story. ओके, सो माय फाइनल क्वेश्चन वुड बी, अगर आपको किसी व्यूअर को सिर्फ एक सेंटेंस में कन्विंस करना हो कि वो आपकी बुक पढ़े हो विदाउट मेंशनिंग द टाइटल, तो आप उसे क्या कहेंगे? मैं कहूँगी सिंपल गाइड है, जो आपको प्रैक्टिकल यूज केस देगा, और ये उन लोगों को हेल्पफुल होगा
those are determined by their motivation, कि उनको एक motivation है कि मुझे एक field में एक skill चाहिए. So it will just like be full guide for them to go with from start to end flow of the time series. An absolutely phenomenal conversation. Thank you so much, ma'am, for your time and your relentless dedication to our youth. Thank you Thank you so indeed. much for थैंक यू मैम। आपकी जर्नी ये प्रूव करती है कि अगर हम राइट डायरेक्शन को विद रॉ टैलेंट कंबाइन करें तो दैट इज़ द एग्जैक्ट मिशन that we champion here at ETL. Pakistan youth can compete with the absolute best in the world. So to our listeners, we hope this conversation inspired you to dream bigger and aim higher. And to everybody, if you enjoyed today's episode, do not forget to subscribe our channel, leave us a review, and share the story of this impact which Ma'am Sulochana tells. And do read her book, do learn about our vibrant tech community and mentorship programs. She has been relentless by giving mentorship sessions as well in our mentorship cohorts, one-on-one mentorship cohorts. Thank you so much, Ma'am Sulochana, for joining. And let's keep celebrating brilliance that our country has to offer. Thank you so much. Thank you so much for having me.